Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to solve the numerical problems of unit number 8, that is thermal properties of matter. And the first numerical is the temperature of a water in a beaker is 50 degrees centigrade. So the temperature in centigrades is given, that is 50 degrees centigrade. He says that what is its value in Fahrenheit scale. So you have to convert it into Fahrenheit scale. So the formula that we use to convert it into Fahrenheit, as we know that F is equals to 9 by 5C plus 32, simply by putting the value 9 by 5 into 50 plus 32, it will gives you the value of 122 degree Fahrenheit. ठीक है, so ये temperature convert हो गया in Fahrenheit. That is the first numerical. Second one is that normal human body temperature is 98.6 Fahrenheit. So temperature in Fahrenheit is given, that is 98.6 degree Fahrenheit. So he says that you have to convert it into Celsius and Kelvin scale. So temperature in Celsius you have to find it out, and temperature in Kelvin, दो चीज़ें आपने ये फाइंड करनी है. ठीक है जी. सो सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए जो फॉर्मूला है, सो इसी फॉर्मूला को हम दोबारा रीअरेंज करेंगे. सो सी द फॉर्मूला विल बिकम सी इज इक्वल्स टू 5/9 into f minus 32. Simply by putting the values you will get the answer. यहाँ पर आपको पुट करना है 98.6, और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड. सिंपली अगर इसको आपने केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है, सो तो टेम्परेचर इन केल्विन जो आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा, दैट इज इक्वल फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे उसके लिए, दैट इज C प्लस 273. तो ये हमारे पास यहाँ पर सेल्सियस में निकला हुआ था, वो आप यहाँ पे 37 पुट करेंगे प्लस 273. सो इट विल गिव्स यू द आंसर 310 केल्विन. सो इसी तरह आपके पास ये दो आंसर आ गए. नेक्स्ट इज द third numerical. He says that calculate the increase in length of aluminium bar of 2 meter long. So length of aluminium bar is given. Third numerical, जैसे हमें पता है कि जो ओरिजिनल लेंथ है उसके लिए हम नॉट इसके साथ उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो एल नॉट आएगा, दैट इज एल नॉट इज 2 मीटर्स. And he says when it is heated from 0 degree centigrade to 20 degree centigrade, so T1 is 0 degree centigrade and T2 that is 20 degree centigrade. So if the thermal coefficient of linear expansion of aluminium is 2.5 into 10 raised to power minus 5 per Kelvin, so alpha is also given. Alpha is equals to 2.5 into 10 raised to power minus 5, yes, minus 5 per Kelvin. So he says that you have to calculate the increase in length. Basically you have to calculate del L, which is equals to L minus L नॉट. ये आपको फाइंड करना, ठीक है. So as we know the formula,
L minus L naught is equals to alpha L naught del T. सो del T आप यहीं से निकाल लेंगे. सो पहले इसको आप कन्वर्ट कर लें केल्विन के अंदर. सो ये जो बन जाएगा ये आ जाएगा 0 plus 273 Kelvin, which is equals to 273 Kelvin, and this is 20 plus 273 Kelvin, which is equals to 293 Kelvin. आप यहीं पे del T भी निकाल लें. So del T is equals to T2 minus T1. So it is 293 Kelvin minus 273 Kelvin, which is equals to 20 Kelvin. So this is del T. Now you put the values here. Alpha is given. Alpha is this 2.5 into 10 raised to power minus 5. L naught is given 2. Del T is given 20. So you multiply 2.5 2 into 20, which is 100 into 10 raised from minus 5, which is equals to 1 into 10 raised from minus 3 meters, or 0.1 into 10 raised from minus 2 meters, which is equals to 0.1 centimeter. So this is L minus L naught. Now we are moving towards the fourth numerical, in which he says that a balloon contains 1.2 meter cube of air. Initial volume is given. V naught is equals to 1.2 meter cube is given of air at 15 degree centigrade. T1 is equals to 15 degree centigrade. अब इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लें तो ये आ जाएगा 15 plus 273 and find its volume at 40 degree centigrade. So final volume you have to find it out at 40 degree centigrade. T2 is equals to 40 degree centigrade. So इसको भी केल्विन में करेंगे तो 40 plus 273. Thermal coefficient of volume expansion of air is given, which is beta, that is equals to 3.67 into 10 raised from minus 3 per Kelvin. So formula is V is equals to V naught into 1 plus beta del T. So पहले आप इसको जो है वो कैलकुलेट कर लें. 15 plus 273, that is 288 Kelvin, and T2 is 313 Kelvin. ठीक है. सो यहीं पे आप del T भी निकाल लें. del T is equals to 313 Kelvin minus 288 Kelvin. So which is 25 Kelvin. del T आ गया आपके पास. सो अब इसकी वैल्यूज पुट कर दें. V naught is 1.2 into 1 plus beta is 3.67 into 10 raised to minus 3 multiplied by del T, that is 25. So
जब आप 25 को 3.67 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 91.75 इंटू 10⁻³ इसमें आप जो है इसको इसको जो है वो आप 10 की पावर जो है वो ख़त्म करें। सो ये आ जाएगा 1.2 इंटू 1 + 0.09175, तो हम इसको 0.91 ही लिखते हैं। तो जब आप 1 ऐड कर देंगे 1.2 इंटू so it will become 1.091 when you multiply it with 1.2 ये आ जाएगा 1.308 मीटर क्यूब। सो आप कह सकते हैं दैट इज़ 1.3 मीटर क्यूब। So this is the volume at 50 degree centigrade. Next we are moving towards the fifth numerical. So he says how much heat is required to increase the temperature of 0.5 kg of water. So mass is given 0.5 kg of water from 10 degree centigrade, T1 is equals to 10 degree centigrade. So केल्विन में कर लें इसको तो ये आ जाएगा 10 + 273 which is equals to 283 Kelvin, and from 10 degree centigrade to 65 degree centigrade, T2 is 65 degree centigrade which is equals to 65 + 273 Kelvin, so which is 338 Kelvin. सो टेम्परेचर को हमें लाजमी जो है वो केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है। सो ही सेज दैट यू हैव बेसिकली वो कह रहा था कि आपको हीट फाइंड डेल क्यू ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। सो डेल टी भी निकाल लें, डेल टी आ जाएगा 338 Kelvin minus 283 Kelvin which is equals to 55 Kelvin, ठीक है। हमें डेल क्यू फाइंड करना है। सो फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे हमें पता है डेल क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल टी। सो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वाटर की वो हमें पता है, मैथ भी हमें पता है दैट इज़ 0.5, स्पेसिफिक हीट जो है वो 4200 होती है, और डेल टी जो है दैट इज़ 55। आप इन सबको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1155500 joules heat, which is our answer. Next we are moving towards the sixth numerical, in which he says that an electrical heater supplies heat at the rate of 1000 joules per second. So basically this is the power, that is 1000 joules per second. How much time is required, how much time हमें फाइंड करना है to rise the temperature of 200 gram, mass is given 200 gram which is equals to 0.2 kg डिवाइडेड बाई 1000 कर दें तो ये हमारे पास किलोग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑफ वाटर, तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो हमें पता है 4200 joules पर किलोग्राम।
So from 20 degree centigrade to 90, so T1 is given 20 degree centigrade to 90 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको कन्वर्ट कर लें आप केल्विन के अंदर। सो ये आ जाएगा 20 प्लस 273 और ये भी आ जाएगा 90 प्लस 273। सो डेल टी आप निकालें तो डेल टी इज़ बेसिकली T2 माइनस T1 which is equals to 90 minus 20 बेसिकली। सो ये आ जाएगा 70 केल्विन। यहाँ पर इतना प्रॉब्लम नहीं है कन्वर्ट करने में, लेकिन अगर टेम्परेचर आपका यहाँ पर हो -20 और ये 90 हो तो उस केस के अंदर हमें मस्टली कन्वर्ट करना होता है इसको केल्विन के अंदर। सो हम अपनी प्रैक्टिस में ये ले आएँ कि सेंटीग्रेड में अगर टेम्परेचर है तो उसको केल्विन के अंदर लाजमी हम कन्वर्ट करें। सो डेल टी आ गया 70। सो पावर का फॉर्मूला सिंपल हमें पता है, दैट इज़ वर्क डन पर यूनिट टाइम और एंड वर्क डन इज इक्वल्स टू बेसिकली एनर्जी। ठीक है, और एंड हीट इज़ आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो दैट इज़ डेल क्यू बाय टी हो जाएगा। ठीक है, सो पावर इज इक्वल्स टू डेल क्यू क्या है, दैट इज़ एम सी डेल टी डिवाइडेड बाय टी। सो यहाँ से टाइम हमारे पास आ जाएगा एम सी डेल टी डिवाइडेड बाय टाइम। सो मैस कितना है 0.2 है, सी कितना है 4200 और डेल टी दैट इज 70 डिवाइडेड बाय सॉरी ये बाय पी आएगा और पावर है दैट इज 1000। सो सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 58.8 सेकेंड्स। 0.2 को 4200 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा 70 से डिवाइडेड बाय 1000 दैट इज 58.8। नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स the seventh numerical. He says that how much ice will melt by 50,000 joules of heat. Heat is given 50,000 joules. Latent heat of fusion of ice is latent heat of fusion HF is equals to 336,000 joules per kilogram। ठीक है, सो आपने मैस उसका निकालना है हाउ मच। सो फार्मूला हमें पता है, m इज इक्वल्स टू डेल क्यू इज इक्वल्स टू एम एच एफ। यहाँ से हमें m निकालना है, सो m इज इक्वल्स टू डेल क्यू बाय एच एफ हो जाएगा। डेल क्यू कितना है 50,000 जूल्स और ये आ जाएगा 336,000। सो डिवाइड करेंगे विच इज़ 0.15 kg। दिस इज द mass। Next we are moving towards the next numerical number 8. He says that find the quantity of heat need to melt 100 gram of ice। वो कहता है find the, आपने क्वांटिटी ऑफ हीट निकालनी है, क्यू आपने निकालना है, which is required to melt 100 gram of ice। mass is given 100 gram of ice। अगर आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करें which is 0.1 kg। 100 gram of ice from -10 to 10 degree centigrade। T1 is -10
and T2 is 10 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इस केस के अंदर हमें इसको केल्विन में कन्वर्ट करना लाजमी है, ठीक है जी। सो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे केल्विन के अंदर। सो -10 + 273 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 10 + 273, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि पहले हम -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके जाएंगे इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, और फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। सो यहाँ से यहाँ तक जो आएगी वो आएगी हमारे पास हीट mc डेल टी। यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और फिर यहाँ से यहाँ तक mc डेल टी। तो फिर हम एक हीट हमारे पास यहाँ से आएगी, एक यहाँ से आएगी और एक यहाँ से आएगी। तो फिर इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो वो हमारे पास जो है वो उसका टोटल अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी जो हमें रिक्वायर्ड है। सो पहले जो हमें -10 टू 0 डिग्री तक लेके जाने के लिए हीट चाहिए वो आ जाएगी डेल क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल टी। सो मैस कितना है, दैट इज़ 0.1 एंड स्पेसिफिक हीट आइस की लगाएंगे दैट इज़ 2100, और डेल टी इज़ बेसिकली 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ बेसिकली आपके पास ये आ जाएगा आपके पास 263 केल्विन, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 0 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर केल्विन कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास बेसिकली आता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू 0 + 273 केल्विन विच इज़ इक्वल टू 273 केल्विन, ठीक है। सो यहाँ पर जो डेल टी आएगा दैट इज़ डेल टी इज़ 273 - 263 विच इज़ इक्वल्स टू 10 केल्विन, ठीक है। सो यहाँ पर जो टेम्परेचर आएगा वो हमारे पास आएगा 10। सो जो हीट हमें मिलेगी वो मिलेगी 2100 जूल्स। ये हीट हमें देनी पड़ेगी -10 से इसको 0 पर लाने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास स्टेप 1 हो गया। फिर स्टेप 2 में हमें पता है डेल क्यू इज इक्वल्स टू MHF, ठीक है। सो लेट यहाँ पर मैस कितना है हमारे पास 0.1 एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज 336,000, ठीक है। सो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 336,000 जूल्स सेकंड वाले पोर्शन की हीट। फिर हमें यहाँ से यहाँ तक निकालनी है हीट। सो वो आ जाएगी हमारे पास डेल क्यू इज इक्वल्स टू MC डेल टी। मैस कितना है 0.1, C स्पेसिफिक हीट अब वो वाटर में कन्वर्ट हो चुका है दैट इज़ 4200, और डेल टी अगेन हमारे पास जो है वो 10 ही आएगा क्योंकि ये आ जाएगा T2 आपके पास 283। सो इसके लिए जब डेल टी निकालेंगे तो डेल टी आ जाएगा आपके पास 283 - 273 विच इज इक्वल टू 10 केल्विन। सो ये भी आ जाएगा आपके पास 4200 जूल्स डेल क्यू, ठीक है। सो इसको बेशक आप डेल क्यू 1 कह लें, इसको डेल क्यू 2 कह लें और इसको डेल क्यू 3 कह लें। सो जो Q आएगी दैट इज इक्वल्स टू डेल क्यू 1 प्लस डेल क्यू 2 प्लस डेल क्यू 3। डेल क्यू 1 is 2100 plus 336,000 plus 4200। सो जब आप तीनों को ऐड करेंगे सो जो हीट आपके पास आ जाएगी 39900 joules। दिस इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ हीट
required. Next we are moving towards numerical number 9, which is how much heat is required to change 100 gram of water. Mass is given 100 gram of water. So अगर आप इसको कन्वर्ट करें किलोग्राम्स के अंदर, विच इज़ 0.1 kg ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू स्टीम, ठीक है, यानी बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर आपने इसको स्टीम में कन्वर्ट करना है. सो आपने लेटेंट हीट, हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड, आपको डेल क्यू निकालना है. सो एच latent heat of vaporization of water is 2.26 into 10 raised to power 6 joules per kilogram. ठीक है, सिंपली फार्मूला हमें क्या लगाना है, फार्मूला हमें लगाना है डेल क्यू इज इक्वल्स टू एम एच वी. ठीक है, सो mass is 0.1 into 2.26 into 10 raised to power 6. तो जब आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2.26 into 10 raised to power 5 joules heat is required to change 100 gram of water into steam at its boiling point. So next we are moving towards the 10th numerical, that is find the temperature of water after passing 5 gram of steam, 5 gram of steam at 100 degree centigrade through 500 gram of water at 10 degree centigrade. So mass of steam is 5 gram, which is equals to 0.005 kg, and mass of water is 500 gram, which is equals to 0.5 kg. So temperature of steam is 100 degree centigrade and temperature of water is 10 degree centigrade. ठीक है, बाकी जो C है, specific heat capacity of water, that is 4200 joules per kilogram, and latent heat of vaporization, that is 2.26 into 10 raised to power 6 joules per kilogram. ये चीज़ें हैं जी. अच्छा जी, सो बेसिकली जो हमें यहाँ पे चीज़ सॉल्व करनी है वो जो है, स्टीम को जब हम उस वाटर में से गुजारेंगे तो बेसिकली स्टीम जो है वो हीट को उसमें से हीट लॉस हो जाएगी और जो वाटर है वो हीट गेन कर लेगा. सो बेसिकली हीट लॉस्ट बाय स्टीम इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय वाटर. ठीक है, अब हीट लॉस्ट बाय स्टीम कौन कौन सी है, एक तो हीट उसने लॉस, हीट का जो लॉस हुआ है उसका वो बेसिकली लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन थी, दैट इज़ एम एच वी, प्लस फिर उसके बाद
वो दोबारा वाटर में कन्वर्ट हो गई और वो किसी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर से किसी दूसरे टेम्परेचर पे चली गई। दैट इज़ सो उसमें जो हीट आएगी वो आएगी हमारे पास एम सी डेल्टी। ठीक है, सो दैट इज़ एम सी डेल्टी। और जो वाटर ने जो हीट गेन की वो हीट बेसिकली हमारे पास आएगी एम सी डेल टी। लेकिन ये मैस ऑफ वाटर है, ये मैस ऑफ स्टीम है, ये मैस ऑफ स्टीम है। ठीक है, सो सिंपली यू पुट द वैल्यूज हेयर। मैस ऑफ स्टीम आप बेशक यहाँ से कॉमन ले लें या अभी ऐसे रहने दें इसको। ये आ जाएगी मैस ऑफ स्टीम इंटू एच वी प्लस मैस ऑफ स्टीम सी डेल टी क्या आएगा आपके पास बेसिकली दैट इज़ 100 माइनस टी, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से वो किसी टी टेम्परेचर पे आ जाएगी ना स्टीम। सो यहाँ पर मैस ऑफ वाटर सी डेल टी, वाटर का टेम्परेचर था 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सो ये जो आएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड से किसी टेम्परेचर के ऊपर हायर टेम्परेचर पे चला जाएगा, दैट इज़ टी माइनस 10। ठीक हो गया जी। अब इसमें आप सिंपली वैल्यूज़ पुट करेंगे। mass of steam is 0.005 0.005 into HV, latent heat of vaporization 2.26 into 10 raised to power 6 प्लस एक ये चीज़ हो गई और C है 4200 और mass of steam 0.005 multiplied by 100 minus T, which is equals to mass of water that is 0.5 into 4200 into T minus 10। अच्छा जी, सो 0.005 को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 11300 प्लस इस सारे को सॉल्व करने के बाद इन दो को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 21 into 100 minus T, which is equals to, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये भी आ जाएगा आपके पास 2100 इंटू टी माइनस 10। ठीक है जी, सो ये आ जाएगा 11300 प्लस 21 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 2100 माइनस 21 टी इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 2100 टी माइनस 21000। सो आप इस माइनस 2100 को इधर ले आएँ और टी को आप इधर ले आएँ, ये आ जाएगा 11300 प्लस 2100 प्लस 21000 इज इक्वल्स टू 2100 टी माइनस 21 टी। इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे ये आ जाएगा आपके पास 2121 टी और इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 34440। ठीक है, सो यहाँ से टी क्या आ जाएगा 34440 डिवाइडेड बाय 2121, सो विच इज़ equals to 16.2 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इसी के साथ न्यूमेरिकल हमारे ख़त्म हुए। अल्लाह हाफिज़।